everyone can hear me and they're doing well. अगर आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है so just let me know ताकि I can like initiate. Let me see what's going on. Okay. Okay. So yes. Okay. मैं बस 1 मिनट चेक करना चाह रहा हूँ if I can like. Oh yes, it's public now, and yeah, that's good. Live viewers one, okay. One is a number, okay. मैं बस कंफर्म कर लूँ if I'm going live right now. ठीक है. So I guess people have started joining up. So you guys can like comment and whatever you feel like you want to ask or say, please go ahead. And meanwhile, I'll talk about Erasmus Mundus scholarship because मेरा जो आज का session है वो specifically इसी के related है. And जो कि कुछ comments मुझे आए थे when I posted that I'll be going live today on LinkedIn. So, I mean, I posted on LinkedIn that I'll be going live on Facebook as well as YouTube collectively. And my apologies, first of all. तकरीबन 20 मिनट का डिले जो आया है was outside and I just had to rush back as quick as possible. तो इस वजह से थोड़ा सा डिले हो गया था. तो let's go ahead and let's like start. अच्छा, तो one thing that I would like to first of all clear you guys that Erasmus Mundus scholarship is not that difficult. जितना इसका hype बना हुआ है पाकिस्तान में, it's not that difficult. Just so that you guys like know about this, and I'm pretty sure अभी तक जितना भी content मैंने upload कर दिया है regarding Erasmus, मेरे लिस्ट में फ्रेंड लिस्ट में फेसबुक पर या फॉलोअर लिस्ट में या लिंक्डइन पर जो कनेक्शंस हैं आई थिंक दे आर क्वाइट फेमिलियर विद व्हाट टाइप ऑफ स्कॉलरशिप दिस एक्चुअली इज. मुझे कुछ लोगों ने लाइक क्वेश्चंस पूछे थे एरास्मस मंडस स्कॉलरशिप के बारे में. I'll just like delve into that right away. Let's go ahead and let's like open up the app. Abbas, assalamu alaikum. Hope you're good. Just wanted to know applying for the Erasmus. Okay, applying for the scholarship. And then you also have commented, wanted to know major requirements. Okay. Erasmus Mundus scholarship के लिए there are no specific requirements in terms of like higher quality term requirements. ऐसा कुछ नहीं है. Like you don't have to appear for GRE, you don't have to appear for TOEFL. I mean, you just go with the IELTS exam, the IELTS academic exam, and
I mean, you just kind of start the application procedure. तो इसके अंदर if you want me to like tell you about the you mean I mean अगर इसमें आप लोग मुझसे पूछना चाह रहे हो कि क्या मेजर रिक्वायरमेंट्स हैं आई मीन आई वुड कमेंट अबाउट दिस के एरास्मस के लिए यू नीड जीपीए I mean, it's not important that you should have a good GPA, but if you have it, I mean, it's not a bad thing. एक plus point होता है, that's going to be a plus point for you definitely. So Erasmus Mundus scholarship के अंदर there are 200 plus programs for scholarships for your for the specialization of your particular domain. अब इसके अंदर we don't have it like this that let me give you an example. As I've mentioned before, for Erasmus, there will be no straightforward macro disciplinary masters or specialization courses. Just say, for example, if we go for like pharmacy, it won't be like MPhil pharmacy, pharmacy practice or MPhil pharmacology or anything like that. I mean, it will be somewhat relevant to the subjects that you study during the degree of pharmacy. Or, for example, sociology. You won't have masters of sociology, rather, you would have masters in criminology or public health. Okay, just one update. If you guys, there would be many people in my list as well who are from social sciences background. Let me tell you one thing. You can apply for public health as well. There are two programs in public health. One is called Europub Health, and the other one is called Public Health in Disasters. So, I mean, it's not important that in type of that program you go just for like from the medical background. No, you can be from political sciences, you can be from social sciences. Just degree के अंदर you have studied about public health, you can apply for the masters in under the Erasmus Mundus through that. Acha, Aves asked me that like GPA documents, etc., etc. Okay, GPA, I mean, it should be good, but it's not a compulsion. Again, there are many people जिनका GPA अच्छा नहीं होता, but they still end up getting the Erasmus Mundus scholarship. So I don't really think that GPA really does matter at this point. What I think matters the most is you have the specific, your work experience, your projects, your internships, your online courses, your conferences that you've attended or presented. Uh, I mean, you presented kind of your abstract in that. I mean, I know one student who I am guiding about the scholarship, like from the very beginning to the end, and she won one of the conferences in Pakistan. I won't name specifically, but there was a cash prize of 30,000 rupees, and she won her abstract actually won the prize in that conference. Now, अब वो जो कॉन्फ्रेंस थी वो उसके काफी रेलेवेंट है फॉर पब्लिक हेल्थ, लेट्स सपोज, ठीक है? तो अब ये उसका एक अचीवमेंट भी है, इट्स काइंड ऑफ एन अवार्ड फॉर हर एज वेल एज उसका एब्स्ट्रैक्ट है, थीसिस है, ऑब्वियसली वो एक अलग उसको जो है ना प्लस पॉइंट मिल गया, वहां पे एज मिल गया. तो यस, अगेन, I am committed to pursue my career in PhD. Okay, I'm currently involved in this field and face writing some papers also. Wes, if you can comment specifically, because I was also working in this field and for a very, very long time. If you can like specify in the comments what exactly you were doing in that field. I mean, maybe I can like specify. Meanwhile, let me just check the comments I received through LinkedIn because there was many comments as well on my LinkedIn that people wanted to know about certain things. Okay, the first comment that I received was
from I'm going to name the people so if they watch this, they can know about this. Kashaf Tahir. She mentioned that if the address on CNIC is not same as the current one, which address to put on the proof of residence document. देखें, रेजिडेंस डॉक्यूमेंट जो होता है वो आपको यूनियन काउंसिल से मिलता है और वो आपको आपके नज़दीकी यूनियन काउंसिल से मिलेगा। अब जहाँ पे आप रहती हैं वो एड्रेस लिखना इज़ वे मोर सेफ एज कंपेयर टू राइटिंग द एड्रेस ऑन योर सीएनआईसी। अब ये बात थोड़ी सी अजीब लगेगी आपको, बट यस दैट्स ट्रू। बिकॉज आपने जब एक लेटर बनवाना है आपने उसको पोस्ट करना है। सीएनआईसी पे कुछ भी मेंशन है, नोबडी केयर्स। यू हैव योर सीएनआईसी, यू हैव योर सीएनआईसी नंबर, इट्स योर नेम इज देयर, दैट्स इट। और सीएनआईसी में मेरा नहीं ख्याल कोई मांगता भी है एरास्मस की स्कॉलरशिप्स में, आई थिंक। या पासपोर्ट की कॉपी आप लोगों ने ऑनलाइन सबमिट करनी होती है, दैट्स वन ऑफ द मोस्ट नेसेसरी थिंग्स। एंड इवन ऑन पासपोर्ट आई डोंट थिंक देयर इज एनी इशू इफ योर एड्रेस इज समवेयर एल्स एंड लिखा कहीं को और का हुआ है। you it doesn't really concern to your application, honestly. Okay, tips for writing an outstanding LOM, tips and tricks for again LOM. LOM का एक मोहम्मद शहबाज को एक इशू आ रहा था। ओके, ठीक है। मेजरली आप लोगों को जो इश्यूज आए हैं वो LOM में ही आए हैं। Like I am assisting program manager. Okay, PBSA, that working capacity building regarding biosafety and biosecurity linked to public health. अच्छा, आपका थोड़ा सा ज़्यादा स्पेशलाइज्ड टाइप का एक्सपीरियंस है। मेरा स्पेसिफिकली जो एक्सपीरियंस था वो विद ब्लड डोनेशन, फंड रेजिंग, अंडर प्रिविलेज कम्युनिटीज़ के लिए लाइक रेज करना फंड, राशन एंड ऑल दैट। So it was completely like different thing that I was doing. What made me more relevant to the field was that मेरा जो internships मेरी थी, that was like completely clinical. I'm a pharmacist, so I was working in hospitals, in different hospitals, and was working for a very long time. And then I was also working like in specific segments of other patient consultation stuff as well. So it was entirely different from what you're doing. Okay, so and there is my final year project regarding the hesitancy of polio vaccine article that hope to be on the way of publishing. Okay, I mean, ठीक है, आपका एक्सपीरियंस ओवरऑल इट लुक्स प्रॉमिसिंग टू मी ऑनेस्टली, बट देखो, remember one thing, there will be thousands of applications. There are every year there are thousands of applications. Even when I was applying there was thousands of applications for every single program. To every single program that I applied there were literally thousands. ठीक है, पूरी दुनिया से आ रहे हैं, वो सिर्फ पाकिस्तान से नहीं आ रहे हैं लोग। ठीक है, you have to make your CV, because इस स्कॉलरशिप के अंदर जो है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है CV का। You have to make your CV in a way that makes you completely relevant to the program. And I think if you know about Erasmus, I'm pretty sure you must have heard this, that for Erasmus relevancy is the key. ठीक है, तो relevancy is one of the major important stuff that I would say when you're making your CV, keep that in your mind. And उसके बाद मैं LOM पे आ जाता हूँ, so I like go quickly over the things. Meanwhile, if there is any questions for anybody, they can like ask or anything like that. LOM, अब LOM के लिए I can like guide you like this के letter of motivation का सिंपल मतलब क्या है। आपने वो बात करनी है उस लेटर के अंदर कि आपकी मोटिवेशन नजर आए। ठीक है, if people can see your motivation towards a specific field or the program that you're applying, and you are already working for a program like that, you can easily get the scholarship. Honestly, it's not a big deal, but again, having the knowledge is the main problem.
having that kind of expertise in language is the problem. I mean, I'm pretty sure there are many people who are way more, competitive and excelled in their fields. But the only problem they will ever face is making their CV and writing their LOM. Or if there is a like third option, there will be people who don't even know the procedure of applying. Like they won't even know the website. उनको पता ही नहीं है website के बारे में कुछ. They won't even know how it works and what exactly do they ask in the interview. इंटरव्यू में भी खैर बहुत बात की बात होती है. Letter of motivation consists of one type of strategy that is called the SMART strategy. Yes, SMART. आप इसका फुल फॉर्म गूगल कर सकते हो आप लोग. यू कैन फाइंड इट व्हाट एग्जैक्टली डज दैट मीन्स. एंड बिफोर आई मूव फॉरवर्ड यार, प्लीज़ चैनल को, फेसबुक को या यूट्यूब चैनल को लाइक, फॉलो या सब्सक्राइब कर लिया करें. हम लोग बड़ी मेहनत कर रहे हैं इस कंटेंट के ऊपर, एंड वी गाइस आर मेकिंग दिस काइंड ऑफ कंटेंट फॉर यू पीपल. ऑनेस्टली, व्हेन यू कम ऑन Erasmus to study further, guys, you don't even get a single minute of free time for you. हम लोग अपने काम के टाइम में से वक्त निकालते हैं और इस चीज को करते हैं बैठ के, just because there are many students who still don't suffer a lot while applying for any type of scholarship, and not just one, multiple. I mean, when I started applying, I literally had no knowledge about these things, and when there was a time when like I had no knowledge, and there was a time when I had all the knowledge, but implementing that knowledge was one of the main problems. ठीक है, ये स्टेजेस में जाता है. ये एक बार में इतनी ये लिटरली ये आसान नहीं है, एंड आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई पीपल थिंक दिस वे. इट्स नॉट सो इजी टू स्टार्ट अप्लाइंग. देखो, अप्लाई करना आप शुरू कर लोगे किसी तरह से, बट व्हेन यू फेस एनी काइंड ऑफ हर्डल ड्यूरिंग दैट एप्लीकेशन, वहां पर मेजर अवाम क्विट करती है. या इवन इफ यू अप्लाइड, कुछ लोगों के पास क्रेडेंशियल्स ही ऐसे नहीं होते हैं तो वो सिलेक्ट ही नहीं हो पाते हैं. देन पीपल से, ओ भाई वो तो बहुत competitive है, वो तो बहुत मुश्किल है. मुश्किल है, obviously there will be thousands of applications, but what would make you separate or distinct from others is that how different or how related to the Erasmus program you are. Could you save the live please on the channel? Yeah, I mean, I'm uploading this live and I believe it will be saved. Yeah, it will be on my channel and you guys can like watch it later on. Assalamu alaikum, kaise ho Usman? Yeah, Talha, I'm good. How are you doing? Talha Munir. I guess I remember, yes. Okay. Okay, sir, I try to get help of AI to make motivational letter and type it by myself, but I detected it on different edit. यार देखो, ये काम नहीं करो ना. You guys do this thing and that's the reason you guys are not able to write an LOM. Why? See, if you're writing an LOM by your words and your choices, why do you even feel the need to go on AI detectors and put it there? आप तो लिटरली अपना खुद नुकसान कर रहे हैं यार. ऐसे नहीं करना. व्हेन यू आर राइटिंग एन एलओएम, पहले तो अपनी स्ट्रैटेजी ये सोचो, आंखें बंद करो, बैठ के आराम से सोचो. इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम. एलओएम लिखना एक बहुत बड़ा स्किल है और ये बहुत लोगों को नहीं आया आज तक. ठीक है, लिखना इज डिफिकल्ट, राइटिंग इज वे डिफिकल्ट देन यू कैन इमेजिन. ओके, व्हेन यू आर राइटिंग एन letter of motivation or statement of purpose, whatever it is, it's kind of a same thing. Always take some time, think about it, and once you think about the whole story of your life, then you like start with like some good words. Just say, for example, if you have, oops, sorry, okay, LOM start करते वक्त, when you're starting your LOM, सबसे पहले, first of all, you have to think about your whole life. What exactly were the things that made you do a certain degree? What exactly was the things that made you go certain way?
or certain path of your life. Once you have that idea, okay, this was the reason that I chose this degree, I completed this degree, I did these projects, I did this internship, or I did this thesis, and you have a very clear understanding that why was the main reason you started in the first place. I mean, then you're good to go. All that remains is for you to write some good grammatical words, some good sentences, and just like structure it in a proper smart method. So it's like you know, okay, so there is one smart method, there is one star method as well for writing an LOM. You can check out either one of those. Okay. When you're writing that, follow that type of methodology and just start writing, and I think that should be fine. You don't have to go, you don't have to like prepare your whole LOM then put on AI detector which you completely wrote it. Definitely there are many AI detectors that are literally messed up, वो खराब हैं, they don't work properly. आप उस पे जाके वो डालोगे, instantly वो कैप्चर कर लेगा उस चीज को, वो आपके वर्ड्स गए. Now you have to write your LOM all over again. नेक्स्ट टाइम अब आप उसको चेक करोगे, वो वाला जो एल्बम आपने एआई पे पहले लगाया है वो प्लेज भी देगा, वो एआई डिटेक्शन भी लगा देगा. क्यों? व्हाई? बिकॉज मे बी you just copied few sentences from somewhere. You never copy anything. Think of your own mind. It will take a lot of time. First of all, just prepare a rough draft. Then I told you some methods, star or smart method. Either one of those, choose one, select that, properly study that, then apply that method on your letter of motivation. Once you've applied, change the sentences to like better words, better sentences, and structuralize it. उसका एक proper structure बनाओ. Starting with what was the first event that made you select this specific course or whatever it is, and what was the last point, I mean, what is the last point of your future that you think you want to achieve? And that's the reason that specific program, either Erasmus scholarship or any other scholarship, is going to be a bigger step for you and the most achieving step for you. For example, अब सिर्फ Erasmus की तो बात मैं नहीं कर रहा. Erasmus, yes, can be one of the most best examples in my scenario, but again there are many scholarships. फ्रांस की पेरिस सैक्ले की एक स्कॉलरशिप आती है, पेरिस साइट की एक स्कॉलरशिप आती है. देयर आर मेनी स्कॉलरशिप्स इन इटली एज वेल, स्वीडन एज वेल. आई मीन स्वीडन कह रहा हूँ, व्हाट डू वी से दिस, स्विट्जरलैंड एज वेल, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, Canada, US. I mean, there are a bunch of scholarships that you can apply, and mostly are covered. Yes, Erasmus offers you the highest stipend throughout the Europe. I'm not sure about other countries, but so far as I think, this literally is offering the highest stipend of all. तो उसको थोड़ा सा आप लोग फोकस करें, एंड आई थिंक LOM एक बार अगर खुद लिखने बैठे हैं, मेरा नहीं ख्याल आपको एआई डिटेक्टर पे डालने की भी जरूरत है. और वो जो एआई डिटेक्टर्स आप लोग यूज कर रहे हैं वो फ्री वाले हैं, वो हमेशा आपको गलत रिजल्ट देंगे. And you don't go and put your original work on AI detector. This is a tip that I'm giving you when preparing for your LOM. Now, tips and tricks for like Erasmus. Dekho, there are a few tips and tricks. It's regarding relate your CV as much as you can. Relate your letter of motivation, but keep it in simple English. Europeans don't know the tough English language. You don't have to be sounded as an so-called अंग्रेज. आप सिर्फ LOM अपना लिखें एक सिंपल इंग्लिश में जो कि पढ़ने में समझ आए. ज़्यादा एक्सट्रावेगेंट लिखेंगे तो ऑब्वियसली वो दैट विल टर्न बैक टू यू. तो आई थिंक I've said pretty detailed things about Erasmus and the letter of motivation part as well. CV का भी मैंने आप लोगों को बताया, पहले भी मैंने जो लाइव किया था उस पर भी मैंने बड़ा क्लियरली बताया था that when you're preparing your CV, you have to make sure that you relate your CV as much as you can. But again, don't lie, don't
fake anything, because that will be a very big problem later on. And आई थिंक या अभी तक तो यही चीज़ें हैं जो मैं बता सकता हूँ. If you have any more questions, please comment so I can like proceed further. Okay. हम्म. यार देखो, सिर्फ आपकी डिग्री से और आपके एक्सपीरियंस से मैं नहीं बता सकता कि आप पब्लिक हेल्थ परसू कर सकते हो कि नहीं. आई मीन, डेफिनेटली आप फर्स्ट लेवल पे एलिजिबिलिटी रखते हो, बट क्या आपने आइल्स दी है? क्या आपके पास ऑनलाइन कोर्सेज हैं रेलेवेंट सीवी में ऐड करने को? क्या आपके पास कोई स्पेसिफिक अवार्ड्स हैं? क्या आपके पास कोई थीसिस के टॉपिक्स हैं जिन पे आपने काम किए या कोई पब्लिकेशंस हैं? तो ये बहुत सारे सवाल होते हैं. बिल्ड आइडियाज, अब मुझे आपका नाम नहीं पता क्या है, बट इफ आई एम नॉट रॉन्ग, शाहवाज करके नाम था आपका शायद. तो यार ये सीन होता है. इस तरह से मैं आपको क्या ही बता सकता हूँ. अगर आपको इसमें लाइक बेसिक एलिजिबिलिटी पूछ रहे हैं तो वो तो मैं आपको भी बता रहा हूँ, यूर एलिजिबल. यार अपनी सीवी बनाओ ना, मेरे जान के टोटे, अपनी सीवी बनाओ यूरोपास फॉर्मेट में. उसकी भी मैं वेबसाइट यहाँ पे मैं पोस्ट कमेंट्स में कर देता हूँ, आपके लिए इजी हो जाएगा. तो उसको आप खोलो, उस पे अपनी सीवी बनाओ. और लिंक्डइन पे अगर आपने मुझे रीच किया था पहले, तो फिर लिंक्डइन पे ही मुझे रीच दोबारा कर लें. उस पे ही मैं आपको फिर गाइड मजीद आगे फर्दर कर देता हूँ. दैट्स व्हाट आई कैन डू फ्रॉम माय साइड. ये मैं आपको लाइक लिंक इधर भी. अच्छा, ये मैंने लिंक पोस्ट कर दिया है इधर यूट्यूब पे. इफ यू गाइस आर लाइक वाचिंग माय लाइव ऑन फेसबुक, प्लीज आल्सो चेक आउट द कमेंट्स इन यूट्यूब फेसबुक लाइव. या अगर अगर आप मुझे फेसबुक लाइव पे देख रहे हैं, सॉरी, तो यू कैन वॉच माय कमेंट्स on YouTube live as well, but I've also commented the link on my in the comments of Facebook live, so I mean you can check that out there as well. अच्छा, उसके बाद मुझे एक सवाल और आया था. इज देयर अ स्पेसिफिक और रिकमेंडेड फॉर्मेट अबाउट सीवी? हाँ जी, ये अभी मैंने आपको जवाब दिया उसी चीज़ का. दैट मैंने एक लिंक पोस्ट किया है, europass.europa.eu करके है ये. नाउ दिस इज अ लिंक फॉर यूरोपास सीवी. सो यू मेक योर यूरोपास सीवी ऑन दिस वेबसाइट. पहली बात तो ये फ्री बनेगी, पैसे नहीं देने पड़ेंगे. दूसरी बात ये है कि ये फॉर्मेट ही चलता है, सब यहीं से बनाते हैं जो भी अरास्मस पे अप्लाई कर रहा होता है. they make this they make the CV from this website. Okay sir, working on it and CV बना ली मैंने. बना लिया आपने यूरोपा सीवी? ओके, मुझे एक अगला सवाल है. हसनैन खान, हसनैन, यस हसनैन, कैसे हो? आई होप यू आर डूइंग गुड. आज बंदे कम हैं स्ट्रीम में यार. अभी तक लाइक मुझे ये क्वेश्चंस आए हैं that I've already like answered. And let me see if I have any more comments. No, no more comments on Facebook yet. Okay, तलहा गायब हो गए हैं आप भी. ओके, नो प्रॉब्लम. अच्छा सर, आइल्स एंड थीसिस पब्लिकेशंस नहीं, तो यार आपके थीसिस भी नहीं है, आपकी पब्लिकेशन भी नहीं है, आपका आइल्स भी नहीं. यार पहले तैयारी करें उसकी, जानी ऐसे थोड़ी अप्लाई हो जाती है. यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड व्हेन यू आर अप्लाइंग फॉर अ स्कॉलरशिप. देखिए, बी प्रिपेयर्ड बिफोर यू इवन वांट टू कंसिडर अप्लाइंग. ऑनेस्टली, आपके पास आपका पासपोर्ट, आपका आइल्स, एकेडमिक आइल्स होना चाहिए. अप्लाई करने से पहले ये दो चीज़ें आपके पास होनी ही चाहिए. ठीक है. और फाइनल ईयर के अंदर अगर आपने थीसिस किया है कोई जो पब्लिश नहीं हुआ,
वो भी नहीं है अगर आपके पास, तो फिर जनाब आपको पब्लिकेशन या थीसिस में से एक चीज़ चाहिए। अगर वो नहीं है देन यू नीड टू हैव समथिंग एल्स एक्स्ट्रा जो शो करे, क्योंकि देखो एरास्मस मंडस के अंदर यू नीड टू शो योर रिसर्च और थीसिस। आपको ये शो करना ही पड़ेगा दैट आपको रिसर्च आती है। थीसिस के प्रोजेक्ट मेंशन करो या पब्लिकेशन मेंशन करो, आपको दोनों में से एक चीज़ चाहिए, दैट इज़ फॉर श्योर। एरास्मस में उसके बगैर मैंने अभी तक किसी का नहीं सुना कि भाई बगैर रिसर्च के हो गया उसका। चांसेस ऑफ सिलेक्शन इन अप्लाइंग फाइनल। ओके, अब आप देखें, देर आर चांसेस। आई नो फ्यू पीपल who literally applied in their last semesters last year and they got selected and they are currently studying on Erasmus Mundus scholarship। इसका रूल ये होता है कि आपने जिस साल में अप्लाई करना है, फॉर एग्जांपल आप अभी अप्लाई कर रही हैं इस साल में, ठीक है, अगले साल के अगस्त से पहले पहले यू शुड बी क्लियर विद योर लास्ट ईयर। आपका रिजल्ट और आपकी डिग्री आपके पास नेक्स्ट ईयर अगस्त से पहले आपके हाथ में होनी चाहिए। अगर नहीं होती है देन दैट इज अ प्रॉब्लम। आप यार पहले आप मुझे अपना नाम बताओ ना, ये जो बिल्ड आइडियाज जो यूट्यूब पे कमेंट कर रहा है जिसका नाम बिल्ड आइडियाज है, काइंडली टेल मी योर नेम। बिल्ड आइडियाज, काइंडली आप अपना नेम कमेंट करें ताकि मुझे पता चले मैं किससे बात कर रहा हूँ। शावेज, शावेज मुझे एक बात बताएं। चले मैं आपको एक बात सुनाता हूँ बल्कि। मैं ना आपको एक बात बताता हूँ, रुके कामरान एक सेकेंड बस। शावेज आप ये जो बात कर रहे हैं ना, देखिए मेरा मकसद आपको डिस्करेज करना नहीं है, ना ही मेरा मकसद आपको क्रिटिसाइज करना है इस बात पर। लेकिन आपको एक जो बात बता रहा हूँ वो आपकी सीख के लिए है, ठीक है। आप 2 मंथ से प्रिपेयर कर रहे हैं। इट टुक मी 9 to 11 months टू प्रिपेयर फॉर द स्कॉलरशिप। पहली बात, आप आज अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, मोस्टली नहीं कर सकते अफोर्ड, मोस्टली नहीं कर सकते, ठीक है। इवन आई कुडंट अफोर्ड। लेकिन एक ये भी बात है, जिस चीज की चाह होती है ना, जिसको कुछ लाइक आपको एक, जिसे कहते हैं ना हमें अंदर से एक आग लगी होती है कि यार कुछ करना है, कुछ करना है, कुछ करना है। आप कहीं ना कहीं से कैसे ना कैसे अरेंज करते हैं हर चीज को, आप वो काम करते हैं एंड देन यू टेल योर सेल्फ हाँ मैं कर सकता था, मैंने किया, ठीक है। और दूसरी बात रही रिकमेंडेशंस की, पाकिस्तान में प्रोफेसर्स यूजुअली रिकमेंडेशन नहीं लिख के देते हैं। एंड आपको मैं मजे की बात बताऊं, दिस इज अ प्लस पॉइंट फॉर यू दैट यू आर गेटिंग दिस चांस टू राइट अ रिकमेंडेशन बाय योर ओन सेल्फ। ऑनेस्टली ये चांस किसी को नहीं मिलता दूसरी यूनिवर्सिटी में। जो प्रोफेसर ने लिख के दे दी है दूसरे मुल्कों में, जो उन्होंने लिख के दिया आपको वही चाहिए, आपको वही मिलना है, आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं मिलना, कोई तारीफें नहीं लिखेंगे वो आपकी। अरे भाई, यू आर लकी दैट यू आर गेटिंग दैट चांस दैट यू हैव टू राइट योर ओन लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, ठीक है। मैं तो शुक्र कर रहा था कि मैंने खुद लिखना है, बिकॉज आई कुड राइट सो मच थिंग्स अबाउट माई सेल्फ एंड ऑब्वियसली वो जस्टिफाइबल भी थी क्योंकि वो काम किए हुए थे ड्यूरिंग माई डिग्री। लेकिन अगर आपको ऐसे मौके मिलते हैं, दिस इज अ गुड चांस, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई इट्स अ प्रॉब्लम फॉर यू। एंड रही बात आइल्स की, यार देखो देयर आर मेनी पीपल हु कैन नॉट अफोर्ड आइल्स बट दे स्टिल समहाउ मैनेज टू गो फॉर इट। आप लैब टेक्नोलॉजिस्ट हो यार, गेट ट्राई टू गेट सम लाइक पार्ट टाइम जॉब एंड फुल टाइम जॉब। डे टाइम में फुल टाइम करो कुछ, नाइट में कुछ देख लो
पार्ट टाइम करो, किसी तरह से अरेंज करो। इस साल नहीं अप्लाई कर सकते हो, जस्ट प्रिपेयर योर सीवी। अगर आप इस साल नहीं अफोर्ड कर सकते हो, अपनी सीवी प्रिपेयर करो, अपनी चीजें प्रिपेयर करो, नेक्स्ट ईयर में अप्लाई कर लो, गैप ईयर लो, उसमें फुल टाइम जॉब करो, साथ पार्ट टाइम कुछ देखो, एंड यू कैन जस्टिफाई दैट एक्सपीरियंस एज वेल। जल्दी किस चीज की है यार? ये जल्दबाजी जो है ना, ये काम खराब करती है मेरा। फिर मैं कह रहा हूँ, आई डोंट हैव एनी मीन्स टू लाइक क्रिटिसाइज यू, बट आई एम एक्चुअली टेलिंग यू ऑन दिस दैट if you cannot do something in a specific time period, वेट करो, प्रिपेयर करो, आगे जाके अप्लाई कर लो। कोई कहीं नहीं भागेगा। लोगों ने 3-3 4-4 साल 5-5 साल जॉब करके भी अरास्मस में अप्लाई किया एंड दे वन इट। ठीक है, देव डिड इट। आई डोंट थिंक इट्स इम्पॉसिबल। इनफैक्ट उसमें ज्यादा चांसेस हो जाएंगे, क्योंकि यू विल हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू प्रेजेंट इन योर सीवी। ठीक है, खाली या हल्की सीवी देने से बेहतर है यू गिव देम अ स्टफ दैट दे व्हेन दे रीड दे नो, अच्छा ये बच्चा ही इज मोर कंपैटिबल देन एनी अदर, दे विल सिलेक्ट यू ऑन फर्स्ट प्रायोरिटी। ठीक है, एरास्मस के अंदर ये भी चीज होती है, फुल स्कॉलरशिप नहीं ऑफर हो रही तो वो पार्शियल पे कंसिडर करेंगे या सेल्फ फंड पे करेंगे। बहुत लिटरली बहुत जो है ना लेस प्रोग्राम्स होते हैं ऐसे, जिनके अंदर जो है ना सिर्फ फुली फंडेड सीटें होती हैं और वो ज्यादा कंपेटिटिव हैं। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए ध्यान से सोचो एंड देन वर्क ऑन द थिंग्स दैट यू वांट टू। डोंट रश ओवर थिंग्स दैट कैन बी डेंजरस फॉर योर फ्यूचर। ये मैं कहना चाह रहा हूँ आपको बस। मुझे 1 मिनट दीजिए। अच्छा, उसके बाद मुझे क्वेश्चन आया, कैन वी ऐड दोस पब्लिकेशन द सीवी दैट आर नॉट रेलेवेंट टू द प्रोग्राम? कैन, कैसे करोगे यार अलाइन? I don't understand that the publication that are not relevant. How can you even align those to the programs? I mean, if I'm understanding correct, आप एक बार बताओ जरा मुझे, जो मैं सोच रहा हूँ क्या ये चीज वही है? Okay, what if you don't have enough certificates or didn't participate in any conference or any volunteer activity? In any activity, what do you suggest? Should I consider this? And यार देखो, वैसे अगर तो आपको मौका मिलता है, गो फॉर इट। आई वुडंट से कि नहीं, गो फॉर इट। बट अगर आपको ऐसा मौका नहीं मिल रहा, तो ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं काफ़ी जो फ्री भी हो जाते हैं, वो कर लें, वो बेहतर हैं। और इसमें आप फिर पूछ रहे हैं कि यार कितने सर्टिफिकेट चाहिए? 3-4 काफ़ी होते हैं, सीवी के अंदर कितना कुछ मेंशन करोगे? आई मीन, यू डोंट हैव टू फिल योर सीवी टू अ लेवल कि वो सारा जो है ना कंजेस्टेड सा मटेरियल हो जाए, वो पढ़ना मुश्किल हो जाएगा। इतना मटेरियल भी ज़्यादा, इतना ज़्यादा भी ना हो कि पढ़ना मुश्किल हो जाए, और इतना कम भी ना हो कि समझ ही ना आए कि बंदा रेलेवेंट भी है कि नहीं। ठीक है, वॉलंटियर नहीं है तो एक्स्ट्रा करिकुलर तो होगा, किसी इवेंट में काम किया होगा, कोई लीडरशिप एक्टिविटीज, कोई पार्टिसिपेशन, कोई एब्स्ट्रैक्ट प्रेजेंटेशन, कोई थीसिस की प्रेजेंटेशन, एनीथिंग लाइक दैट, वो भी तो होगा ना आपके पास, उसको देखें। एंड उसके बाद अफाफ ने पूछा है मुझे, डज कोर्सेरा कोर्सेज रिलेटेड टू पब्लिक हेल्थ गिव यू एन एज ऑन अदर्स लाइक एपिडेमियोलॉजी? हाँ, यस, इट डज गिव यू, it does give you an edge, Afaf. And honestly, अगर आपका कोई थीसिस या कोई टॉपिक ऐसा है रिलेटेड टू पब्लिक हेल्थ और एपिडेमियोलॉजी, तो दैट क्रिएट्स अ ग्रेटर इम्पैक्ट। बट अगेन, एवरीथिंग नीड्स टू बी कंपेंसेटेड। लाइक अगर जीपीए कम है तो आपके पास थीसिस ज़्यादा हो, या वर्क एक्सपीरियंस हो, या कुछ भी ऐसा हो जो उसको कंपेंसेट कर रहा हो, ठीक है, जस्टिफाई कर रहा हो। जैसे सर्टिफिकेशंस कम है तो आपकी पब्लिकेशन ज़्यादा हो, या आपका एक्स्ट्रा करिकुलर ज़्यादा हो, तो मतलब कोई ना कोई चीज़ ऐसी हो जो दूसरी को कंपनसेट कर रही हो, अगर वो कम भी है तो। आई होप आई एम क्लियर विद दिस पॉइंट।
और इसमें अच्छा, सीवी के हर तरह के पार्ट में आपने ये चीज़ को ध्यान में रखना होता है कि आप प्रोग्राम के साथ रेलेवेंसी शो कर रहे हो। अब कामरान, मुझे आपकी बात क्लियर समझ नहीं आई है, बट इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आप वैक्सीन प्रोग्राम के लिए करना है तो वेट लैब वाली तो कोई पब्लिकेशन चाहिए भी नहीं यार। आप लीडिंग इंटरनेशनल स्टडीज ऑफ वैक्सीनोलॉजी की बात कर रहे हैं ना अगर, तो उसके अंदर तो वेट लैब वाली पब्लिकेशन नहीं चाहिए उसमें तो। उसमें इसका कोई काम ही नहीं है। मॉर्फोफेन में अगर आप कर रहे हैं तो फिर आई कैन कंसिडर योर थिंग कि आप सही कह रहे हैं, बट प्रोग्राम देखो यार, पहले प्रोग्राम किस में अप्लाई करना है। और देखो, पब्लिकेशन नहीं है, प्रोजेक्ट तो किया होगा ना फाइनल ईयर के अंदर, वो तो होगा, उसका तो टॉपिक पड़ा हुआ है ना, वो लिखो प्रोजेक्ट्स के अंदर कि वो आपका प्रोजेक्ट है। थीसिस ही आपका प्रोजेक्ट होता है यार। इस बात को भी अंडरस्टैंड करें, आपका अपना जो थीसिस होता है फाइनल ईयर के अंदर, एक है या दो हैं, वही आपका प्रोजेक्ट भी होता है, बिकॉज थीसिस का टॉपिक आप लोग ही तो टीचर के साथ मिलकर डिसाइड करते हो। सो इट्स द हेडिंग दैट यू इन्वॉल्व इन द अंडर द सेक्शन ऑफ प्रोजेक्ट्स एज वेल। एंड इफ यू हैव पब्लिकेशंस, वहां पे आप उसको भी मेंशन कर सकते हो कि हाँ भाई ये मेरा थीसिस पब्लिश हुआ हुआ है, अगर हुआ हुआ है। अगर नहीं हुआ हुआ तो बस प्रोजेक्ट्स की हेडिंग दे के उसमें मेंशन कर दो। इसमें मैं ना आप लोगों को एक सेकंड दें मुझे, मैं आप लोगों को ना अब एक सीवी खोल के एक आइडिया दिखा देता हूँ, इफ आई कैन। आप का कोई और किसी का क्वेश्चन है तो प्लीज इसको कमेंट कर दें, मैं मीनवाइल जो है उसको आंसर करने की कोशिश करूँ साथ साथ। अच्छा, सीवी में दिखाऊंगा तो नहीं, दिखा नहीं सकता बिकॉज ये किसी की है और ये कम्प्लीटली पर्सनल है, तो ये अच्छी बात नहीं होगी। हाँ, बट मैं आप लोगों को सुना सकता हूँ या बता सकता हूँ चीज़ें जो जो होनी चाहिए। साथ साथ आप लोग अपने क्वेश्चंस पोस्ट करते रहो कमेंट में, सो आई कैन आंसर अकॉर्डिंगली। अच्छा, ये कमेंट आया है जनाब शाहवेज साहब का। एज आई यार इस एक मिनट दीजिए मुझे शाहवेज, मैं इसका टेक्स्ट एडिट कर दूं जरा, टेक्स्ट की समझ नहीं मुझे आ रही। डिजाइन, ओके, चलें। आपने कमेंट किया है, as I was in medical laboratory technology, our final year project was internship on clinical lab. I can mention it. It was a great. It was a general for all. यार जनरल है तब भी मेंशन करो ना। It was general for your class, not for your whole university or for whole city. It was just for your class. You can mention that. And it was an internship lab. तो आप इस तरह की चीजें मेंशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, in our final year, fourth and final year in pharmacy, we had to go for clinical rotations in a hospital for like 2 straight years.
we had to go to a hospital for clinical rotations. I got a letter from my university stating that I actually went there and did my clerkship and training. Now in my CV, I've posted that, I've written it कि भाई मैंने 2 साल इस हॉस्पिटल में ये क्लिनिकल रोटेशंस पे काम किया है जाकर, एंड इट वाज पार्ट ऑफ माय करिकुलम. मैं ये नहीं भी बताता कि पार्ट ऑफ माय करिकुलम था, इट्स फाइन, क्योंकि मेरे कॉलेज ने, मेरी यूनिवर्सिटी ने मुझे एक लेटर बना के दिया था कि भाई आप 2 साल के लिए इस हॉस्पिटल में हमारे कहने पर, हमारे सुपरविजन में गए हैं, रोटेशन करके आए हैं, और ये पार्ट था आपके करिकुलम का. आप होके आए हैं उधर, आपने एक नया काम सीखे, एक ट्रेनिंग ली है, उस ट्रेनिंग का आपको लेटर मिल गया है. आई थिंक आप सीवी में ऐड कर सकते हैं, फिर उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है. आई होप आई हैव आंसर्ड इट. और जो हेडिंग्स बता दें सीवी, कामरान भाई इतने बहुत ही ज्यादा चालाक है. खैर यार मैं हेडिंग्स बता भी दूंगा, कोई मसले वाली बात नहीं है. आई टेल यू द हेडिंग्स, इट्स वेरी इजी, एंड आई थिंक इट्स कॉमन सेंस. वो हेडिंग्स कॉमन सेंस वाली हैं, कोई इतनी बड़ी लॉजिक नहीं है उसके पीछे. मेन लॉजिक होती है जो अंदर का कंटेंट होता है, सारी गेम उसकी है. ठीक है, सीवी की सबसे बड़ी गेम होती है. सीवी इज वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स डॉक्यूमेंट्स. मैंने खुद वर्कशॉप अटेंड करी थी काफी रिगार्डिंग सीवी प्रिपरेशंस एंड द टाइप्स ऑफ सीवी. अब सीवी टाइप सुन के आप कह रहे होंगे अच्छा ये फॉर्मेट होगा यूरोपास का, या दूसरा, या ये दूसरा. नहीं, इट्स नॉट द फॉर्मेट ऑफ सीवी, इट्स कंप्लीटली डिफरेंट थिंग. एक सीवी होती है जिसमें आप अपना नाम और सारा एक वो लिख के एक्सपीरियंस बताते हो. एक होती है जिसमें आप प्रॉपर वर्डिंग के अंदर एक पूरा अपना जो है बायोडाटा बताते हो, बायोग्राफी. ठीक है, बायोग्राफी एक होती है, एक इन्फोग्राफी होती है, फिर करिकुलम विटाए होती है, फिर एक और तरह की आती है, मुझे उसका नाम मेरा भी जहन से एकदम स्किप हुआ है. ये 5-6 तरह की सीवीज होती हैं. ठीक है, जिसको जो जो मांगा होता है. अब सीवी और रेज्यूमे डिफरेंट है, नोबडी नोज दिस थिंग. एरास्मस में रेज्यूमे लिखा होगा, हम उठा के सीवी चिपका देंगे. ये हमारी गलतियां हैं, ये हमारी ना सीखने वाली ना अहलियां हैं ये हमारी. तो यू शुड हैव द कंप्लीट नॉलेज. ओके, एक और कमेंट आया, लेट्स सी व्हाट इज दैट. लाइबा याकूब, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. मैंने ऑलरेडी एमएस किया हुआ है. क्या मैं सेकंड एमएस के एक्सेप्टेंस का? नहीं 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 नहीं, दिस इज अ मिथ. ऑनेस्टली मैं आपको मजे की बात बताता हूँ, इस साल एरास्मस में ज्यादातर बच्चे वो थे जिन्होंने एमफिल किया हुआ था. एरास्मस पे इस साल ज्यादा बच्चे वो थे जिन्होंने एमफिल किया हुआ था या एमएस किया हुआ था. इवन देयर वर फ्यू पीपल, लाइक लिटरली वेरी रेयर, बट देयर वर फ्यू पीपल जिन्होंने 2-2 एमएस किए हुए थे पहले से. वो तीसरे के लिए जा रहे थे. उन्होंने कहीं और से एमएस किया, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान से एमएस किया, एक एमएस पाकिस्तान में एक यूनिवर्सिटी से, दूसरा दूसरी यूनिवर्सिटी से, एरास्मस में अप्लाई करके तीसरे एमएस के लिए चले गए. अब एरास्मस के अंदर कुछ प्रोग्राम्स हैं जो मास्टर्स हैं, कुछ प्रोग्राम्स हैं जो मेडिसिन के रिलेटेड होते हैं. वो उसको हम स्पेशलाइज्ड कहते हैं, वो स्पेशलाइजेशन के तरह के प्रोग्राम्स होते हैं, which you also call them as masters, but you also call them as specialization subjects. For example, public health and disaster, Europub Health Plus, sustainable drug discovery, leading vaccinology studies, marine biotechnology, वो भी somehow biotech वालों के related है. Then innovative medicine, that's a double masters. Public health and disasters is also kind of a double masters. Then जॉइंट मास्टर्स हैं, डबल मास्टर्स हैं, जिनको हम ड्यूअल मास्टर्स कहते हैं. ठीक है, तो वो एक तरह की डिग्रीज नहीं है, देयर आर मल्टीपल टाइप्स. एंड यस, इवन इफ यू हैव एन एमफिल, आई नो वन ऑफ माय सीनियर्स फ्रॉम द सेम प्रोग्राम, one of my senior cohort fellows, she started her PhD in Pakistan, and she was offered the Erasmus Mundus scholarship for public health and disasters, and she went there and she is studying. अभी मैं उनके जूनियर कोहोर्ट में हूँ, उनका मेरा ख्याल खत्म हो गया, अभी यहाँ खत्म होने वाला है. तो ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं, एंड ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बीएस केमिस्ट्री की है, एंड दे गॉट एडमिशन इन यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया फॉर एमएस लीडिंग टू पीएचडी फॉर 5 years, कंप्लीट स्कॉलरशिप, रिसर्च एसोसिएट पोजीशन के तौर पर. स्टाइपेंड कम होता है, बट दे कैन लाइक सर्वाइव. एरास्मस पे मैं क्यों इतना एम्फोसाइज कर रहा हूँ अपनी तमाम पोस्ट्स के अंदर और तमाम वीडियोस के अंदर, बिकॉज एरास्मस का एक तो स्टाइपेंड सबसे हाई होता है, दूसरा एरास्मस में आपका नेटवर्क सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है, क्योंकि आप एक जगह पे नहीं पढ़ते हो, यू स्टडी इन एटलीस्ट 2 to 4 universities throughout your program. Then from in every university there will be
every week there will be a new professor from each other university. For example, we had like one professor from Lisbon University. Lisbon हमारे cohort में नहीं है, but there was a professor for Lisbon who came to give us a lecture. Then we have one professor from what was the name, Uppsala University, Sweden. इस तरह से different different जगहों से professors they like come every week to give you a lecture. ठीक है, you have a possibility of networking with them. We also had one professor from Turkey as well. हमारे कोहोर्ट में टर्की का नामो निशान भी नहीं था, बट प्रोफेसर वहां से पढ़ाने आई है. हर हफ्ते नया प्रोफेसर आएगा. हर सेमेस्टर के बाद यूनिवर्सिटी चेंज होगी, कंट्री चेंज होगी, नया आपको कल्चरल एनवायरनमेंट मिलेगा. The more people you meet in Europe while studying, the more network you have. The more network you have, the higher chances of securing your future preference, internship or job is. ठीक है. तो यस लाइबा, आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन एज वेल. अगर कोई और कुछ पूछना चाह रहा है, प्लीज मोस्ट वेलकम. I'd be happy to answer anything else if you want to like ask. कामरान, आई होप मैंने आपका भी जवाब ओके यस सॉरी कामरान, मैंने आपका जवाब नहीं दिया अभी. सीवी के हेडिंग्स में यार सबसे पहले तो आपका नाम, नेशनैलिटी, फोन नंबर, ईमेल और आपका एड्रेस. अब एड्रेस में प्रेफरेबल ये है कि एरास्मस के लिए यू राइट योर कंप्लीट एड्रेस, बट अगेन एक नॉर्मल एकेडमिक सीवी बनाते हुए यू डोंट राइट योर कंप्लीट होम एड्रेस. वो कोई सेंस नहीं बनाता, क्योंकि वो उन्होंने आपके घर नहीं आना, उन्होंने आपको सिर्फ ये चेक करना आप हैं कहाँ से. एंड वैसे भी जब आप एप्लीकेशन फिल कर रहे होते हैं तो उसके अंदर आपके पास लाइक उसमें ऑप्शंस होते हैं जहाँ पे आप क्वेश्चंस में फिल करते हो अपना एड्रेस वगैरह. So it's not really recommended from my side to add the whole home address. But again, it's personal choice. It doesn't really make a difference. Then आपके पास एजुकेशन आ जाती है जिसमें आप अपनी यूनिवर्सिटी का नाम मेंशन करते हैं, अपना जीपीए बताते हैं और रेलेवेंट सब्जेक्ट्स अगर आपको लगता है तो आप वो लिख सकते हैं. ब्लंडर ये होता है कि बच्चों का अगर कोई रेलेवेंट सब्जेक्ट नहीं भी है वो पूरी की पूरी ट्रांसक्रिप्ट छापते हैं. ये ना करें, ये गलत है. ठीक है. देन प्रोजेक्ट्स और पब्लिकेशंस की हेडिंग आती है, वर्क एक्सपीरियंस आता है, अवार्ड्स, कॉन्फ्रेंसेस हैं तो वो, या प्रेजेंटेशंस जो आपने लाइक अपने एब्स्ट्रैक्ट या थीसिस प्रेजेंट किया किसी कॉन्फ्रेंस में, वो बताना है. आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, योर वॉलंटियरिंग एक्टिविटीज़ हैं, देन सर्टेन लेवल ऑफ स्किल्स दैट यू हैव. दैट्स इट. आई मीन इससे ज़्यादा तो कुछ भी नहीं होता. हाउ टू मेक प्रोफाइल यूनिक. देखें, डिपेंड करता है प्रोफाइल क्या है. ये बहुत कॉम्प्लेक्स सवाल पूछा आपने. ये सवाल अच्छा है आपका, लेकिन ना बात ये है कि दिस इज नॉट अ क्वेश्चन दैट कैन बी आंसर्ड इन वन लाइन. ऑनेस्टली ये काफ़ी लंबा सवाल जो है ना जवाब है इस बात का, क्योंकि हर बंदे की प्रोफाइल फ्रॉम बैकग्राउंड टू करंट स्टडीज एंड करंट वर्क लाइक कंप्लीटली डिफरेंट होता है. यूनिकनेस नहीं चाहिए एरास्मस के अंदर. मतलब यूनिक तो ऑब्वियसली होना चाहिए, बट रेलेवेंसी भी तो होनी चाहिए ना जिसमें अप्लाई कर रहे हैं. तो आई थिंक रेलेवेंसी इज द मेन की टू अप्लाई एरास्मस मंडे स्कॉलरशिप. उससे ज़्यादा आई डोंट थिंक कोई और चीज़ मायने रखेगी उसमें. बट यस, अगर आप उन रेलेवेंसी में रहते हुए यूनिकनेस लाने की बात कर रही हैं तो ये तो डिपेंड करता है ना आपने किया क्या हुआ है, लाइक आपकी प्रोफाइल क्या है. मैं अपना वैसे यहाँ पर मैंने फेसबुक का भी लिंक मैं पोस्ट कर देता हूँ यूट्यूब के लिए, यूट्यूब के कमेंट्स में. सो यू गाइस कैन लाइक चेक आउट माय फेसबुक एज वेल. फेसबुक का मेरा प्रोफाइल ही है, मैंने उस पे पेज पे नहीं काम किया, उस पे प्रोफाइल पे कर रहा हूँ मैं लाइव वगैरह जो जाता हूँ. मैं उसका लिंक भी दे देता हूँ और उस पे या लिंक्डइन पे आप रीच आउट कर सकते हैं एंड यू कैन डिस्कस इन मोर डिटेल. ठीक है, और लिंक्डइन का भी मैं लिंक डाल देता हूँ. लिंक्डइन का मैं इसलिए लिंक डाल रहा हूँ जस्ट सो दैट इफ एनीबडी वांट्स टू रीच आउट टू मी दे कैन रीच आउट देयर एज वेल.
मुझे लगता है एक और कमेंट आया है. सर आई गॉट बेस्ट प्रेजेंटेशन अवार्ड फ्रॉम माय प्रोफेसर, सो शुड डेफिनेटली अगर सर्टिफिकेट आया उसको तो मेंशन करो. अपनी एक प्रॉपर जो है यूरोपा सीवी बनाओ जिसके अंदर मेंशन एवरीथिंग दैट यू गॉट ड्यूरिंग दिस bachelor's of yours, and I think then yeah you should be good to go. But again IELTS देना is compulsory. उसमें like मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि IELTS compulsory नहीं है, मैं झूठी उम्मीद नहीं दूंगा. Competition level बढ़ता जा रहा है day by day. People are applying, and when people apply, Erasmus वाले भी जो है इसको kind of compulsion बना रहे हैं अब कि IELTS दिया हो बच्चे ने. तो yes, IELTS is must. हमारे पास तकरीबन 4 मिनट रहते हैं अभी भी. मैंने सोचा था 1 घंटे का लाइव करूंगा मैं. एंड उसके बाद मेरी आप लोगों से एंड पे अभी भी यही रिक्वेस्ट है यार, इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा. बिकॉज अगेन वी गाइज आर रियली बिजी, बट हम आप लोगों के लिए टाइम निकाल रहे हैं कि कुछ 5-10 बच्चे 20 बच्चे भी जो है अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो दे कैन लर्न समथिंग फ्रॉम दिस. कुछ बच्चे होते हैं ऐसे जिनको लिए बड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है टू गेट प्रॉपर इन्फॉर्मेशन अबाउट डिफरेंट स्कॉलरशिप्स. एंड जस्ट सो दैट यू गाइज नो, I won the Erasmus scholarship as well as I won a scholarship from the US United University of Texas मेडिकल ब्रांच थी जहाँ से मुझे MS leading to PhD in pharmacology and drug development में ऑफर हुई थी. Then I also got a scholarship from Palermo University, Italy, मास्टर्स इन न्यूरोसाइंस के लिए उन्होंने मुझे कंप्लीट स्कॉलरशिप ऑफर किया था. बट इन तीनों में सबसे ज़्यादा स्टाइपेंड यूरो अरास्मस का था. दैट वाज द रीज़न मैंने अरास्मस चूज़ की थी. एंड देयर वाज अ सेकंड रीज़न कि यूरोप के अंदर मुझे पता था कि मैंने डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ना है, स्पेसिफिकली कैरोलिंस्का, स्वीडन, जो कि मेरा एक ड्रीम इंस्टीट्यूट था, मेरे सर का एक ड्रीम इंस्टीट्यूट था. तो सर को फॉलो करते करते इसको मैंने ज्वाइन किया था. एंड मुझे पता था कि यहाँ पे नेटवर्किंग जितनी होगी वो मेरी कहीं पे भी नहीं हो सकती. सो दैट वाज द मेन रीजन कि मैंने नेटवर्किंग के पीछे भागा था, क्योंकि इवन इन मेडिसिन यू नीड नेटवर्क्स, दैट्स फॉर श्योर. लाइबा आप पूछ रही हैं 7.5 स्कोर इज गुड इनफ. भाई मेरा 7.5 था. मेरा आइल्स में 7.5 बैंड स्कोर था. तो यस, इट इज डेफिनेटली गुड स्कोर. And then Kamran, thank you so much for explaining to me. Also, one thing, do you recommend putting references at the end of CV? नहीं, I would never recommend putting references at the end of CV. That doesn't make any sense. और सबसे लेम काम है ये अगर ये कर दोगे तो लाइक पूरी सीवी का जनाजा निकल जाएगा इस बात के ऊपर कि आपने सीवी के एंड में रेफरेंस ऐड कर दिया है. क्योंकि जब आप एप्लीकेशन फिल कर रहे होते हो अलग से ऑप्शन होता है रेफरेंस लेटर अपलोड करने का या प्रोफेसर का नाम और ईमेल मेंशन करने का कि वो उनको कांटेक्ट करके आपके बारे में पूछ लें. तो डजंट मेक एनी सेंस कि आप सीवी में भी ये चीज करो. हर जगह पे कॉपी पेस्ट वाला काम नहीं करना. ये कॉपी पेस्ट होता है, ठीक है, तो ये चीज नहीं करनी. शील्ड है बस, ठीक है ना, कोई मसला नहीं, आप मेंशन कर दो. आपके पास कुछ ना कुछ तो है ना शो करने को कि यार ये मैंने किया था, ये देखो इसका ये प्रूफ है. फाइन, नो प्रॉब्लम. देखें, इतना सोचा नहीं करते. और अगर और दूसरी एक मैं आप लोगों को एडवाइस ये दूंगा कि कभी भी अपने आप पर, अपनी पढ़ाई पे इन्वेस्ट इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ टाइम. ये दो चीज़ों को इन अपने ऊपर पढ़ाई के लिए या एकेडमिक लेवल पे इन्वेस्ट करते हुए नहीं सोचते. आई नो पाकिस्तान के अंदर हमारी ये थोड़ी सी मेंटालिटी होती है कि यार फ्री मिल जाए कुछ, जितना मिल जाए उतना अच्छा है. मेरी अपनी थी ये मेंटालिटी. बट अगेन आई वुड हाईली रिकमेंड कि जब पढ़ाई एकेडमिक्स की बात आती है तो वहाँ पे घबराना नहीं चाहिए. वहाँ पे इस चीज़ को फॉलो करना चाहिए कि यार मैं अपने ऊपर इन्वेस्ट करूंगा, ये मेरी इन्वेस्टमेंट है, आज करूंगा, 5 साल बाद मुझे इसका ट्रिपल क्वार्टरल जो है ना वापस मिलेगा. तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमेशा अपने ऊपर इन्वेस्ट करें इन टर्म्स ऑफ पढ़ाई. मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे पास आ जाए जी पेड सर्विस ले लें, नहीं, मैं आपको ये बात कतई नहीं कह रहा. मैं आपको ये कह रहा हूँ कहीं से भी लें, कुछ भी करें, कोई भी हेल्प लें, किसी से भी पूछें, बट ऑलवेज इन्वेस्ट इन योर सेल्फ. टाइम नहीं वेस्ट करें. अगर आपको लगता है दैट यू आर गुड इनफ फॉर Erasmus or for any other scholarship to apply, go apply. But if you feel that you have any kind of problems, if you need any type of guidance, you can reach my LinkedIn. मैंने अपना LinkedIn का लिंक मेंशन किया हुआ है YouTube के कमेंट्स में. And I think that should be really good for you.
कुछ कॉन्फ्रेंसेज और सेमिनार्स के सर्टिफिकेट नहीं होते तो उन्हें मेंशन कर लें सीवी में या नहीं। लाइबा देखें, अगर आपके पास कॉन्फ्रेंसेस की मैं बात करूंगा, अगर आपके पास इसका सर्टिफिकेट नहीं है तो आई वुड सजेस्ट ना करें। प्रॉब्लमेटिक हो सकती है ये चीज़ बाद में आपके लिए। हर चीज़ का डॉक्यूमेंटेड प्रूफ होना अच्छा है। रिस्क ना लें, क्योंकि एक भी चीज़ ऐसी कोई निकल आती है और इन केस इंशाल्लाह आप अगर सेलेक्ट हो जाती हैं देन वो तो ना होने वाली बात ही हुई फिर, क्योंकि वो डिस्क्वालीफाई कर देंगे आपको बेस्ड ऑन फेक इन्फॉर्मेशन। उनको प्रूफ कैसे देंगी कि मैंने अटेंड की थी? तो कभी भी उस चीज़ को नहीं मेंशन करते जिसका प्रूफ नहीं दे सकती हैं आप। ठीक है, आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। एंड एक बार जो बंदे देख रहे हैं एक बार कमेंट्स में लिख दो दैट यू गाइस हैव अंडरस्टूड, सो आई कैन लाइक वाइंड अप दिस सेशन। 1 घंटा हो गया ऑलरेडी, काफ़ी ज़्यादा लंबा सेशन हो गया ये। तो just let me know if you have any other questions. I'll wait for like 2 minutes and then I'll wind up. जी शावेज आप प्लीज इसको देखें। जी जी मेंशन कर सकते हैं। अगर इसमें आपको अब डिटेल्ड गाइडेंस चाहिए तो मेरा लिंक्डइन मेंशन है, मुझे उस पर मैसेज करें, उसमें डिटेल पे बात कर लेते हैं। एंड मैं मुझे बताएं आप लोग अगर चाहते हैं कोई नेक्स्ट मैं इस पे लाइव आऊँ दोबारा तो वो भी बता दें। अगर आप लोग चाहते हैं नहीं तब भी बता दें, डिपेंड्स। आई पोस्ट अगेन टुडे एंड इंशाल्लाह उसको फिर मैं थोड़ा सा 5-10 दिन के बाद करूँगा। जस्ट सो दैट यू गाइस नो, एरास्मस मंडल स्कॉलरशिप ऑलरेडी ओपन है। 2026 से 2028 के कोहोर्ट के लिए स्कॉलरशिप्स ओपन हो चुकी हैं ऑलरेडी। And if you guys are willing to apply or anything like that, please take a look and उसको जो है एक बार चेक करें उसकी रिक्वायरमेंट्स को और अकॉर्डिंगली उसको देख के चलें। अच्छा उसमें लाइबा थैंक यू सो मच। इफ वी रीच आउट टू यू ऑन लिंक्डइन कैन यू रिव्यू मोटिवेशन लेटर फॉर अस? देखें मैं एक बात बड़ी क्लियर कट बता देता हूँ, यू हैव टू रिस्पेक्ट आवर टाइम। ठीक है, ऑलरेडी वीडियोस का बहुत ज़्यादा बर्डन होता है, प्लस वी हैव क्लासेस, plus we have a lot of assignments and everything. I will do the sessions on like live like this for free, but दूसरी चीज़ों के लिए if you need one-on-one sessions, इसमें मैं आपको फर्स्ट स्टेप से लेकर एंड तक गाइड करूं और लेकर जाऊं, फिर उसका हिसाब थोड़ा सा डिफरेंट है। मेरे लिए नहीं है वो, मेरे टीम्स के लिए, टीम मेंबर्स के लिए है, जिनके साथ मिलके हमने आपके एलओएम और आपके रिकमेंडेशन लेटर्स को रिव्यू करना है। एंड कोई बहुत ज़्यादा फी नहीं है, मिनिमल सी है, जस्ट सो दैट यू गाइस रिस्पेक्ट योर मनी एंड टाइम। ये इसलिए है। मैंने पहले फ्री में सेशंस किए थे, मुझे बहुत बुरा रिस्पॉन्स मिला था। बहुत माइन्यूट से बच्चे आए थे, मुझे 150-200 मैसेजेस आए थे लिंक्डइन पे। ट्रस्ट मी, ये आई एम रेडी टू से दिस ऑन ओथ, मुझे 100 से 150 मैसेजेस आए थे लिंक्डइन पे कि सर हमें गाइड करें, हमें भाई बताएं एरास्मस क्या होता है, हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, व्हाट आर द डॉक्यूमेंटेशंस, कैसे करें और कैसे हम विन करें आपकी तरह। मैंने कहा ठीक है भाई, गूगल मीट पे एक सेशन रखते हैं, और मैंने 5 दिन पहले बताया उनको कि भाई गूगल मीट पे संडे वाले दिन या सैटरडे वाले दिन रख लेते हैं। एवरीबडी सेड नहीं सर फ्राइडे को रखें शाम में। मैंने कहा डन, ठीक है। फ्राइडे का मैंने सेशन रखा, लिटरली ओनली 5 पीपल ज्वाइंड इन दैट सेशन। अभी भी मैंने देखा है सिर्फ 5 से 6 लोग, 7 लोग या मैक्सिमम कोई 15 लोग आए होंगे लाइव पे, थोड़ी देर बाद वो भी चले गए। अगर आप लोगों का इंटरेस्ट नहीं है तो मुझे बताने का फायदा नहीं है ना। तो ये आप लोगों के इंटरेस्ट के लिए हमने एक मिनिमल सी फी रखी हुई है कि इफ यू वांट अस टू रिव्यू योर डॉक्यूमेंट्स, इफ यू वांट मी टू रिव्यू योर डॉक्यूमेंट्स एंड प्रोवाइड यू वन टू वन कंसल्टेशन, देयर इज गोइंग टू बी अ वेरी मिनिमल फीस। Again, it's for you guys to respect your time and for me to respect my time and expertise as well, क्योंकि ये काम बड़ी मेहनत वाले होते हैं, ये 1 मिनट के काम नहीं होते हैं।
जितनी मर्जी प्रैक्टिस हो, इट टेक्स अस लिटरली टेक्स आवर्स टू रीड एंड रिव्यू वन डॉक्यूमेंट. आई होप मेरी बात आप लोगों को क्लियर हो रही होगी. एंड मेरा ख्याल है काफ़ी है आज के लिए इतना. इट वॉज वेरी नाइस टू हैव कॉन्वर्जेशन विद यू गाइस. नेक्स्ट टाइम के लिए इजाज़त दें. आई विल कीप पोस्टिंग डिफरेंट स्टफ ऑन माई यूट्यूब एंड फेसबुक. प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियोस एंड शेयर इट फर्दर. मैं आप लोगों से बार बार कह रहा हूँ, इसको शेयर कीजिएगा ताकि दूसरे बच्चे जो सवाल आपने पूछे हैं, अगर उनके कोई सवाल इस तरह के हों, दे कैन सी दिस वीडियो, दे कैन सी दिस लाइव सेशन एंड दे कैन लर्न समथिंग फ्रॉम दिस. एंड मैं एक आप लोगों को अपडेट देता जाता हूँ जाते जाते. नेक्स्ट वीक, आई एम नॉट टेलिंग यू गाइस द डे राइट नाउ. आई विल पोस्ट ऑन माई लिंक्डइन, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम. जी, आप वो मुझे लिंक्डइन पर राब्ता कीजिएगा, बात कर लेंगे इस बारे में. लाइबा, आप मुझे राब्ता कीजिएगा, बात कर लेंगे. नेक्स्ट वीक एक फ्री सेशन अरेंज कर रहा हूँ मैं फॉर एवरीवन. एवरीबडी इज़ फ्री टू ज्वाइन. देयर इज़ ओनली वन कंडीशन कि आप लोगों ने हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स जो हैं, जो सोशल मीडिया पेजेस हैं हमारे, उनको आगे फर्दर शेयर करना है, या हमारी किसी एक वीडियो को आगे शेयर करना है एंड स्क्रीनशॉट शेयर कर देना कि भाई हमने शेयर कर दिया इसको. बस ये रिक्वायरमेंट है. फीस वगैरह कोई नहीं होगी उस सेशन की. वो सेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है. उसमें मेरे साथ साथ 3 से 5 एरास्मस मंडस के स्कॉलर्स होंगे फ्रॉम डिफरेंट प्रोग्राम्स, नॉट जस्ट फ्रॉम पब्लिक हेल्थ एंड डिजास्टर्स बट ऑल्सो मेनी अदर प्रोग्राम्स. जैसे IM है, एक मरीन बायोटेक है, और एक आप लोगों के उसमें सरप्राइज है प्रोग्राम जो बच्चे चाहते हैं कि वो आगे परसू करें. उसमें एक सरप्राइज भी हमने रखा हुआ है. एक प्रो टिप हम आपके साथ उसमें शेयर करेंगे एट द एंड ऑफ सेशन. तो ज्वाइन कीजिएगा, उसको देखिएगा. क्वेश्चंस होंगे, पोस्ट कीजिएगा सिमिलरली. नेक्स्ट टाइम तक के लिए मुझे दें इजाज़त. एंड हैव अ नाइस नाइट अहेड एंड बेस्ट ऑफ लक. इजाज़त दें एंड अल्लाह हाफिज़.